شکریہ کا انتخاب جموں کشمیر اسمبلی نہ ہونے سے الیکٹورل کالج نامکمل. ایک رکن پارلیمنٹ کے ووٹ کی قدر 700 سے کم ہو کر 700 کے نیچے آنے کا امکان. گلمرگ میں ٹورسٹ سیاحوں کا احتجاج. گنڈولا میں آن لائن ٹکٹنگ پر کیا ناراضگی کا اظہار. گنڈولا میں آن لائن ٹکٹنگ سے مقامی گائیڈوں کا روزگار متاثر ہونے کا خدشہ. محکمہ بجلی کا نیا حکم نامہ. بجلی فیس میں اضافے کا امکان. سمارٹ میٹرنگ کے ساتھ ساتھ بجلی فیس میں بھاری ادائیگی کا امکان. محکمہ بجلی نے اوڑی کے غریب گھرانے پر ڈایا قہر. 80,000 کی بل کی روانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دوپہر کا اردو خبرنامہ لے کر سری نگر اسٹوڈیو سے تجمل کا سلام پہنچے. جموں کشمیر ملک بھر اور دنیا بھر کی چند اہم خبریں، لیکن شروعات کرتے ہیں ملک میں صدارتی انتخابات اور جموں کشمیر کے الیکٹورل کالجز کی وجہ سے کیا کچھ ووٹنگ شماری ہو سکتی ہے. ناظرین، صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کی مدت کار مکمل ہوا چاہتی ہے. اب جولائی میں صدر جمہوریہ کا انتخاب جموں کشمیر اسمبلی نہ ہونے سے یہاں کا الیکٹورل کالج نامکمل سا ہے. جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے جولائی میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ایک رکن پارلیمنٹ کے ووٹ کی قدر 708 سے کم ہو کر 700 تک جانے کا امکان ہے. حکام کے مطابق صدارتی انتخاب میں ایک رکن پارلیمنٹ کے ووٹ کی قدر دہلی، پڈوچیری اور جموں کشمیر سمیت دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی قانون ساز اسمبلی میں منتخب اراکین کی تعداد پر مبنی ہونی چاہیے. صدارتی انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج لوک سبھا، راجیہ سبھا اور نئی دہلی، پڈوچیری اور جموں کشمیر سمیت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی قانون ساز اسمبلیوں کے اراکین پر مشتمل ہوتا ہے. واضح ہے کہ اگست 2019 میں جموں کشمیر میں یہاں کی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی اور نہ صرف لیہ لداخ بلکہ جموں کشمیر کی اسمبلیاں فی الحال تحلیل کر دی گئی اور نئے انتخابات کے انتظار تک صدارتی عہدے کے لیے جو ووٹ کی قیمت ہوتی ہے اب وہ 708 سے کم ہو کر اب 700 کے آس پاس ہوگی. اب ہمارے پاس ممبران پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے، لیکن ووٹ کی جو قدر قیمت ہے وہ تھوڑی سی کم ہونے لگی ہے اور لہذا صدارتی انتخابات میں جموں کشمیر کے جو الیکٹورل کالجز ہیں ان کی بنیاد اور ان کی اہمیت بہت کم ہو چکی ہے. ناظرین، بڑی اہم خبر کا رخ کرتے ہیں ضلع بڈگام سے. ضلع بڈگام میں ایک موٹر سائیکل پہ سوار ایک شخص ہلاک ہو گیا. اطلاعات کے مطابق ضلع بڈگام کے خان صاحب علاقے میں گروٹ کے قریب فیاض احمد نجار کی موت واقع ہوئی. کیا ہے پورا واقعہ، سیدھے چلتے ہیں ضلع بڈگام جہاں ہمارے ساتھی کچھ دیر بعد جڑیں گے. ڈار اشرف، ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ دیر پہلے کی تصویریں ہیں، کچھ سیکنڈ پہلے کی تصویریں ہیں. یہ گروٹ خان صاحب علاقہ جہاں پر موٹر سائیکل سوار ایک شخص جو تھا وہ اس علاقے سے گزر رہا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل سوار کو حملہ کر کے اس سے ابدی نیند سلا دیا گیا. ضلع بڈگام کا گروٹ خان صاحب علاقہ اور علاقے میں ایک نوجوان کی انتہائی مشتبہ حالت میں موت واقع ہوئی اور مقامی لوگوں کا اگر یقین کیا جائے تو بتا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل پر معمول کے مطابق مذکورہ نوجوان جو تھا وہ آگے چل رہا تھا کہ اچانک اس کی موت واقع ہوئی. اشرف ڈار سے ہمارا رابطہ ہوا چاہتا ہے. ضلع بڈگام کا خان صاحب علاقہ، خان صاحب کا گروٹ علاقہ، یہاں پر مقامی نوجوان جن کا نام فیاض احمد نجار بتایا جاتا ہے موٹر سائیکل پہ سوار تھا اور اچانک اس کی موت واقع ہوئی. سیدھے چلتے ہیں ڈار اشرف کے پاس. اشرف، آپ کا استقبال ہے اردو خبرنامے میں. تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ علاقہ جو ہے ضلع بڈگام سے کتنا دور ہے اور اس علاقے میں یہ جو واقعہ پیش آیا پولیس نے اس ضمن میں کیا ابھی ابتدائی رپورٹ میں جو معاملہ درج کیے ہیں اس کے مطابق کیا کچھ ابھی تک سامنے آیا ہے. گروٹ خان صاحب کے علاقے میں ایک نوجوان کی موت واقع ہونے سے علاقے میں غم و الم کی لہر دوڑ چکی ہے اور مقامی خواتین، بزرگ، بچے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پر اس نوجوان کی انتہائی مشتبہ حالت میں موت واقع ہوئی. پورا واقعہ کیا ہے، اس واقعے کے بعد پولیس نے ابتدائی طور پر کیا کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا ہے، تفصیلات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں.
बहुत बहुत शुक्रिया डार अशरफ, हमारे साथ गरवेट खान साहब के इस घर से जुड़ने के लिए। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये जो शख्स है जिसका नाम फैयाज अहमद नज्जार बताया जाता है, किस तरह इनकी मौत वाक़या हुई। आप ग्राउंड जीरो पे उस जगह पे मौजूद हैं, इस खबर को आगे बढ़ाइएगा। देखिए तजम्मुल, ये खबर जो है कल शाम को सामने आई कि गुरवेट, ये जो खान साहब का इलाका गुरवेट का इलाका बताया जाता है, यहाँ का जो नौजवान है, ये दो भाई थे जो कि यहाँ से कृसवारी जा रहे, यहाँ से एक इलाका पड़ता है कृसवारी, वहाँ ये जा रहे थे। तो कुछ पर्सनली काम इनका था, ये दो भाई थे जो कि बाइक पे सवार थे। तो जब ये कृसवारी से वापस आ रहे थे जहाँ ये गए थे, उसके बाद जब ये वापस आए तो एक जगह है कृसवारी जिस जगह का नाम है, तो वहाँ पर कुछ नौजवान जो कि सड़क पे बैठे हुए थे, तो कुछ इस हालत में वो थे कि वो कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि नशे की भी हालत भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह उनका रवैया रहा है उसे ये लगता है कि शायद उन्होंने नशा किया था। क्योंकि जब वो ये भाई दो जो थे बाइक पे, एक तो फयाज अहमद नजार और दूसरा इसका भाई जो था, ये दोनों जो है बाइक पे थे। तो ऐसे में जब वहां पर ये नौजवान थे तो इन्होंने इनको रोका, उसके बाद ये जो फयाज अहमद नीचे उतरा तो उसके बाद कुछ हाथापाई हुई है, क्योंकि वो नशे में थे, जिस तरह से उनका रवैया रह चुका है। तो उसके बाद उन्होंने उसके सर पे चोट मारी और आनंद फानंद में जो है उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। जो बड़गाम का खान साहब का जो सब्जी जो है वहां पर ले जाएगा, उसके बाद उसको फौरन जो है सौरा मुंतकिल किया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको जो है मुर्दा करा दिया। मैं इस वक्त उसी घर के पास हूँ जिसका ये चश्म चिराग जो है कल इस हादसे में जिसको कत्ल किया गया, मैं उसी घर में हूँ। ये वो घर है, इनके घर में इस वक्त पूरा मातम छाया हुआ है। यहाँ के जो हमसाया हो या इनके रिश्तेदार हो, एकदम इस तरह की खबर सामने है कि फयाज अहमद नजार, जिसके बाप का नाम अब्दुल रशीद, करीबन 19 साल का ये नौजवान जो कि पेशे से एक कारपेंटर बताया जाता है, तो उसकी जो है उन लड़कों ने जो है मिलकर उसके जो सर पे वार किया, उसके बाद जो उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी मौत हुई है। पुलिस ने फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। अलबत्ता ये भी कहा जा रहा है कि उनमें से एक नौजवान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पुलिस इस वक्त उस स्पॉट पे गई है जहाँ पर यह हादसा पेश आया है, वहाँ पर चली गई है और उसका जो भाई जो साथ में था उसको वहाँ पर जिस जगह पे ये एपिसोड हुआ है वहाँ ले जाया है ताकि वो आइडेंटिफिकेशन करे। पुलिस इस बारे में एफआईआर दर्ज कर चुकी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। मगर जो ये घर है जिसका ये चश्मो चिराग था, वो इस वक्त गमजदा है, पूरा इलाका इस वक्त, क्योंकि तो क्या डार अशरफ ऐसी भी इतलात इब्तदाई तौर पर मालूम हो सकी कि मज़कूरा फैमिली के जो अफराद खाना है उनका किसी के साथ घरेलू झगड़ा वगैरह था, जमीनात का कोई मामला था, या यूं कहें कि यह हादसा अचानक हो गया, इसके पीछे क्या कहानी है वो मालूम ना हो सकी? देखिए तजम्मुल, मैंने पहले भी कहा कि ये जो दो भाई है, ये यहाँ से कृसवारी से एक जगह उसके ऊपर आती नीगू, ऐसा कुछ जगह का नाम है, जहाँ ये दो भाई गए थे। शायद कुछ ये जो काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ लेन देन का उस इलाके में वहाँ पर काम किया होगा, वो पैसे लेने के लिए वहाँ गए, क्योंकि इनका एक बच्चा जो है जो बीमार था, शायद उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी। तो जहाँ इन्होंने काम किया था ये वहाँ गए थे ताकि वहाँ से पैसा कलेक्ट करने के बाद बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए। तो जब ये वहाँ से वापस आ रहे थे तो मैंने पहले भी कृसवारी एक जगह है जहां पर कुछ लड़के जो है वहां पर खड़े थे, तो ये दो भाई बाइक पे आए, तो उन्होंने शायद रास्ता नहीं छोड़ा उनको, तो ऐसे में ये शायद नीचे उतर गए हैं। उसके बाद उन लोगों ने इस पे हमला किया और सर पे जो है हमला किया। गिरफ्तारी किस नौयत की अभी तक हुई? फिलहाल मेरी जो पुलिस सोर्स से बात हुई, उनका ये कहना है कि एक की गिरफ्तारी हमने की है और जो बाकी इसमें एक्यूज्ड है उनकी तलाश इस वक्त जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डार अशरफ, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा। अगले बुलेटिन में भी आपसे इसी खबर पे दोबारा राब्ता कायम करें। अफराद खाना से आप बातचीत कीजिएगा, पुलिस जराये से बातचीत कीजिएगा कि इस तरह के जो तशद्दुद में इजाफा होता जा रहा है कि, और डार अशरफ के मुताबिक एक नजार फैमिली से वाबस्ता दो भाई मोटरसाइकिल पे सवार होकर वो पैसा वसूल करने गए थे, जो हफ्ता भर महीना भर काम करने के बाद उनका शायद वाजिबुल अदा था। ये एक एंगल हो सकता है। इस वाक़े के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक सामने आ चुके हैं, खदशात हैं, लेकिन एक वाक़या ये भी बताया जा रहा है कि पैसा वसूलने के बाद वो अपने गाँव से उस जगह गया था जहाँ पर वाजिबुल अदा पैसा था मजदूरी का, वो वापस लाने गए थे, लेकिन वापस आई तो इस घर की वो चश्मे चिराग की लाश आई, जो अपने बच्चे का इलाज मुआवजा करने के लिए पैसा वापस लौटाने की गर्ज से और पैसा लाने की गर्ज से दूसरे गांव गया था, लेकिन वापसी में उन्हें एक नामालूम जगह पर जो कि दो गांवों के बीच में एक इलाका है, वहां पर बताया जाता है कि कुछ अफराद वहां पे मौजूद थे जिन्होंने उस पर वार किया। उस वार में फैयाज अहमद नजार की मौत वाक़या हुई है और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके
तहकीकात शुरू कर दी। नाज़रीन, कुछ देर बाद आपको मैं कहानी बताऊंगा ऊडी के दूरदराज इलाके की, जहां पर एक गरीब कुंबे पर महकमा बिजली ने 80,000 रुपये का बिल उन तक रवाना किया है। अफराद खाना गरीब होने के साथ साथ इलाज मुआवजा के मुस्तहिक हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में इनका इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन इसी बीच में महकमा बिजली जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। कुछ दिनों के बाद बिजली की जो फीस है, अगर आप अभी तक आपके पास बिजली की जो फीस 1000-1500 के आसपास से शुरू हो जाती थी, तो मानकर चलेगा इसमें 500 रुपये 800 रुपये का और इजाफा हो सकता है, जो आपका अगला बिल अगले महीने तक आ सकता है। ये ज़ेर गौर ये तजवीज़ है सरकार के पास कि स्मार्ट मीटरिंग के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइनों के जो तब्दीली के इम्कानात है और हाई ग्रिड स्टेशन पावर स्टेशन जो है उनकी सलाहियत को मजीद बेहतर किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। लेकिन ये पैसा वसूला जाएगा बिल के जरिए से। सीधे चलते हैं अपने साथी हिलाल हांजुरी के पास। हिलाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं लगातार लाल चौक श्रीनगर से इस खबर पर। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। महकमा बिजली का ये तोहफा आने वाले दिनों में, मैं कुछ देर बाद ऊडी के एक गरीब घराने की कहानी बताऊंगा जहां 80,000 रुपया उस घर तक बिल पहुंच गया जो काफी गरीब हैं। लेकिन आम लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है और इस कहानी में क्या कुछ है कि हमें अब और ज्यादा बिल अदा करनी होगी? पहले से ही लोग बड़ी परेशानी से दो जा रहे हैं। हिलाल, हुक्काम का या बिजली निज़ाम की तरफ तवज्जो देते हैं तो इसमें जो एदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक अब 17.74 यानी 18.5% जो बिजली टैरिफ में इजाफा वो जम्मू के अंदर किया जा सकता है, जबकि कश्मीर के अंदर 13.5% का इजाफा जो है आने वाले दिनों में खासतौर पर अगले महीने से हो सकता है। हालांकि अभी तजवीज़ ही दी गई है, इसकी अभी हतमी जो फैसला है नहीं किया गया है। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है ये हम तफसीलन अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि साल 2019 से 20 के अंदर जब हम देखते थे कि जो आमदन है बिजली का और जो अखराजात है इस बिजली पर, तो उस वक्त यहाँ 955.95 करोड़ का नुकसान होता था। यानी तफावत जो थी वो लगभग 600 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास थी। लेकिन फिर जब हम इसे साल 2020 और 21 में देखते हैं तो ये नुकसान 3000 से ज्यादा यानी 3682 करोड़ पहुंच चुका है और ये नुकसान 19 और 21 के दरमियान का था। लेकिन 21 और 22 के अंदर जो है ये 6500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और अब जो बिजली के माहिरीन हैं या एक्सपर्ट्स हैं या जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जो जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई है कि अगर इसी तरह का सिस्टम जारी रहा और हमने बिजली के टैरिफ में इजाफा नहीं किया तो इस साल के आखिर में या जारी माली साल के दौरान 6000 करोड़ से तजावुज करके 8500 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो इन कॉर्पोरेशंस को उठाना पड़ सकता है और ये इतना बड़ा बोझ होगा कि फिर यहां से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह से 200 यूनिट्स जो बिजली हासिल करेगा उनकी जो फी है उसको भी अब जो है बढ़ा दिया गया है और अब ये 200 यूनिट्स की बिजली जो इस्तेमाल करेगा उसके लिए जो रेट तजवीज की गई है वो फी यूनिट 2 रुपए के हिसाब से, और 400 यूनिट्स जो बिजली इस्तेमाल कर सकता है या करेगा तो उसके लिए तजवीज की गई है 4 रुपए, और उससे ज्यादा जो होगा तो उसकी 5 रुपए या 5.5 रुपए के आसपास उसकी टैरिफ जो है वो रेकमेंड की गई है। लेकिन अब जो ये मामला है, चूंकि दोनों कॉर्पोरेशन जो जम्मू के अंदर भी काम कर रही है और कश्मीर के अंदर भी काम कर रही है, इनका एक यूनाइटेड जो है एक कॉर्पोरेशन है, वहां से ही इसका हतमी फैसला आना बाकी है। चूंकि ये तजावीज जम्मू और कश्मीर की जानब से तो उन्हें दी गई है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जेटी रेगुलेटरी अथॉरिटी कमीशन, वो इस माह के आखिर तक इस हवाले से हतमी फैसला ले सकता है। लेकिन जो ग्राउंड वर्क हुई है उसके मुताबिक 13.5% कश्मीर के अंदर और 18.5% जम्मू के अंदर बिजली फीस में इजाफे की तजवीज रखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी श्रीनगर से तफसीलात देने के लिए। श्रीनगर और जम्मू के लिए अब जो टैरिफ है उसमें बिजली फीस में इजाफे की उम्मीद जो है वो अगले महीने से लगाई जा सकती है। लेकिन ऊडी से कुछ और कहानी आ रही है। ये ऊडी से क्या कुछ कहानी है? मकामी शख्स जो कि मुश्किल हालात में अब भी जिंदगी के शब रोज गुजारता है, महकमा बिजली ने ऊडी के एक गरीब घराने पर
उस वक्त कहर बपा किया जब उन्होंने 80,000 रुपये का बिजली का फी जो है वो अदा किया करने के लिए बिजली फीस की जो बिल है वो रवाना की है। ये इलाका जो है शुमाली कश्मीर का उड़ी इलाका है और उड़ी इलाके में हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद की इत्तला है कि गुलवाल्टा इलाका है और यहाँ से गरीब कसम पुरसी की हालत में एक जिंदगी गुजर बसर करने वाली फैमिली जो है उस पर महकमा बिजली ने अब बिजली फीस की अदायगी के लिए जो बिल रवाना किया है वो बहुत ज्यादा है। उन्होंने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बारामूला से अपील किया कि कहीं न कहीं इस बिल पर दोबारा नजरसानी की जाए। मज़कूरा फैमिली के मुताबिक मज़कूरा इलाके में जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनके मुताबिक इस फैमिली में जो बाल बच्चे हैं और उस वो बड़ी कसम पुरसी की हालत में है, बड़ी मुश्किलात में है। जरा सुन लीजिएगा इस शख्स को और उसके बाद और भी खबरें हैं। नाम मोहम्मद इकबाल है। हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। मेरे साथ मेरी 8 बेटियां, 1 बीवी, 9, 1 मैं, आप 10 आदमी हैं। पहले मजदूरी करता था, उसके बाद मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई, मैं बैठ गया घर में। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं है। मकान मांगा, जगह जगह से एप्लीकेशनें दी, किसी ने नहीं दी। इसी शेड में हम गुजारा कर रहे हैं। कोई दोस्त यार भाई बार कोई भी नहीं है मदद करने वाला सवाए अल्लाह के। इसलिए मेहरबानी करके हमारे साथ कुछ मदद कीजिए। तो इंतजाम की तरफ से कोई कमाने वाला नहीं है, भाई नहीं है। तो पापा के साथ कोई भी खड़ा नहीं रहता, पापा को बहुत प्रॉब्लम होती। इधर शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग से मिली इतलात के मुताबिक अब से कुछ देर पहले महकमा टूरिज्म के उन टूरिस्ट गाइड्स ने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में वो गुज़श्ता पैवस्ता काम करते आए हैं, लेकिन अब की बार गंडोला के लिए ऑनलाइन टिकटिंग होने की वजह से उनका रोजगार जो है मुतासिर हो चुका है। दोपहर का उर्दू खबरनामा मुकम्मल हुआ चाहता है। कुछ देर बाद एक और बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हमदो नासिर।